आज के संदर्भ में ये कौन चित्रकार से संबंधित कविता पाठ है। भाग नंबर 3 का विश्लेषण देखा जाएगा। मैं नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ये कौन चित्रकार है पोएट्री पार्ट 3। ये कवि, इस कविता के कवि भरत व्यास जी, जिसे आपको पिछले अंतर में बताया गया। तो इनके लिखी गई कविता का भाग नंबर 3 का विश्लेषण देखने से पूर्व इनके जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में देखें। जैसे व्यास जी ये बीकानेर नामक राजस्थान से जुड़ा हुआ एक छोटा सा गांव है, वहां पर जन्म लिए हुए और उनका जो जन्म हुआ है 1918 में और जो मृत्यु हुई है 1982 में। माने इनका शेष जीवन जो हुआ है 1918 में जब जन्म हुआ तो उनका शेष जीवन जो हुआ है 64 वर्ष इन्होंने जीवन यापन किया है। इन जीवन के अंतर्गत इन्होंने हिंदी की अपार सेवा की। इन सेवाओं के अंतर्गत भारत व्यास जी विशेष रूप से फिल्म गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। Today we are discussing about one of the poet, the Bharat Vyas, who is a writer, one of the poet. ये कौन चित्रकार है। This poem is the third part. This poem is divided in 3 parts. Now we are discussing about the third part. So he was first of all we are discussing about the poem. Before of that we are discussing about brief introduction about the poet Bharat Vyas. He was born Bija Bikaner in Rajasthan. Is one of the village. Yes, he born at village Bikaner in Rajasthan, right? So he was born in 1918 and he was died in 1982. That means he was his life period is 64 years. In this period, in his life, he was a writer that do the services in different ways. The particularly he was famous as a lyricist of film in the film city. So जरा आपके गीतों में देशभक्त, राष्ट्रीयता, प्रेम, राष्ट्रीयता, प्रेम, बलिदान जैसे गुण हैं। What type of things, what the thoughts, what type of thoughts he was taken in his lyrics. There is a देशभक्त in patriotism or unity of the nation, loving and sacrificing. So these thoughts were taken in his lyrics of the different pictures. Then afterwards, इनके लिखे गए गीतों के मुखड़े जब देखा जाता है, मुखड़े में से lyrics. What are the lyrics? Important lyrics of the Bharat Vyas in his the pictures. Means what type of pictures are important? The famous pictures of the Bharat Vyas is Navarangan और संत ज्ञानेश्वर और इसी प्रकार 2 अंक 12 हाथ। पिक्चरों के अंतर्गत उन्होंने किस प्रकार के मुखड़े लिखी हैं, माने जो चरण है गीत के, ये आधा है चंद्रमा रात आदि। इसके बाद ज्योत से ज्योत जलाते चलो, अंत में इन्होंने ये बताया ये मालिक तेरे बंदे हम। इस प्रकार इनके कुछ गीतों के उल्लेखनीय प्रमुख खड़े हैं। These are the important of the
lyrics of the Bharata Vyasa in different pictures. In the picture of Navaranga, he was given a lyric Adha hai Chandrama, Adha, yes, Rata Adhi. And in this picture of Sant Jnaneshwar, in this picture, his lyric is Jyot se Jyot jalate chalo. Another last one, the do aankhein 12 हाथ से, in this picture, his lyric is I Malik tere bande hum. Malik means God, is it? So इस प्रकार से इन्होंने 1982 में बम्बई के अंतर्गत एक नाटककार यानी एक अच्छे अभिनेता के रूप में कार्य करना चाहते थे, लेकिन वो उन्हें अच्छी की शोभा नहीं लगी, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, फिर से एक कलाकार गीतकार के रूप में रचना करने लगे। In 1942 he gone to Bombay, and the next what he do here meant as a dramatist, as a actor, as actor, but is not satisfied in that field. Again he came to that as a lyricist. This is the brief introduction about the Bharata Vyasa of the poem ये काव्य चित्रकार। ओके, तो ये संक्षिप्त परिचय था। अब इसी संबंधी लिखे गए इनसे लिखे गए कुछ कविता का परिचय यहाँ पे देखा जाता है। इस कविता के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, तपस्वियों से हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। यहाँ पर्वत बने माउंटेन्स, ओके, यानी चोटियां मीन्स या पर्वत के चोटियां। The Himalaya is one of the mountain. Here in different shape they have, and then tapas is compared to as a tapasvi. Mean they are staying erect like the tapasvi means the sage. Sage people are doing the prayer as without any movement. Mean they are sitting or standing erect. So यहाँ पे अटल रूप से माने स्थायी रूप से जिस प्रकार पर्वत है यहाँ के प्रकृति की हिमालय, यहाँ पर इन्होंने हिमालय पर्वतों के बारे में दृष्टि देते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत यहाँ की प्रकृति के पर्वतों की चोटियां जो होती हैं वो किस प्रकार है, जैसे अटल रूप से सेज माने तपस्वियों की जैसे है। तो यहाँ के पर्वतों का तुलना कैसे बताया, तपस्वियों के अटल रूप से रहने वाले तपस्वियों के साथ बताया गया। और उसके बाद ये बर्फ की घुमेदार घेरेदार घाटियां। घुमेदार मीन्स घूमने वाले घाट्स, जिसे घाट एरिया मीन्स यहाँ पर घूमने योग्य होने वाले, घूमने योग्य मार्ग। हाँ, तो इस प्रकार घेरे का माने बाउंड्रीज है। बाउंड्री माने सीमाएं, रेखाएं में इस तरह से ये घाटियां जो होती हैं, ये पर्वतीय घाटियां किस प्रकार है, इसकी जो चोटियां घाटियां में पर्वत छोटी छोटी शिखरें जो होती हैं, उन्हें घाटियों का माने शिखर। ये शिखरें कैसी हैं, ये घुमेदार है, घाट से मीन these all are with the mountains are as a ghat area, and that's occupying certain space in the what one we say in the society, means in the nature. तो ध्वज से खड़े हुए वो किस प्रकार कंपेयर करें, ध्वज के साथ। ध्वज का माने झंडा। ये झंडा जो होता है ध्वज फ्लैग। हाँ, ये फ्लैग से खड़े हैं, फ्लैग के जैसे खड़े हैं। माने कौन है, पर्वत किस प्रकार खड़े हैं, ध्वज के समान।
वो कैसे दिखाई देते हैं? वो घुमेदार और क्या है, घुमेदार और घुमेरदार, माने घेरेदार और घुमेरदार जैसे होते हैं। माने घेरेदार का माने घेरे हुए और घुमेदार का माने घूमने योग्य, है। और ये कैसे होता है? खड़े हुए ध्वज के समान खड़े हुए। फिर कहते हैं the mountains are standing compare as a flag stick, mean as a flag, और खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार। और क्या बताए? न केवल ध्वज के समान बल्कि वृक्ष देवदार के समान। देवदार मीन्स लॉन्ग ट्रीज, क्या है? यस, मैंने ये बहुत ऊंचे लंबे मैंने पेड़ों के वृक्षों के समान ये दिखाई देते हैं। क्या? माउंटेन्स मैंने हिमालय पर्वत। और गलीचे ये गुलाब के क्या होता है? बगीचे। क्या होता है? बगीचे ये ने बहार के, माने गलीचे का माने क्या होता है? ऐसे बोके। बोके मीन्स फ्लावर वाजेस जो होते हैं, गलीचे ये गुलाब के। कैसे गलीचे हैं? ये गुलाब के, गुलाब में से रोज फ्लावर्स, रोज फ्लावर्स माने गुलाब से बने हुए ये गलीचे है, बोके है। माने बोके मीन्स इन मोमेंट एज मोमेंटो to the others, okay, when in your functions we are using this word main thing। तो गुलाब के और बगीचे ये बहार के। बहार का माने सुंदरता, ये सुंदरता से दिखाई देने वाले एक ऐसा दृश्य है जैसे बगीचे। बगीचा माने गार्डन, है ना? गार्डन मीन्स ये वन है। वन कैसा वन है? जो गुलाब के फूलों से पेड़ों से लगे हुए एक अच्छे से सुंदर सा आकर्षित होने वाला है ना, बहार है। माने मन को बहारने वाला, मन को मोहित करने वाला ऐसा दृश्य है। हिमालय कैसे बताया गया? एक बगीचे के समान। कौन से? फूल के बगीचे। जैसे गुलाब का बगीचा भिन्न भिन्न रंगों से, भिन्न प्रकार से बहुत सुंदर दिखाई देने वाला। और जो बताया गलीचे ये गुलाब के, और क्या बताया? ये पर्वत जो होते हैं गुलाब के गलीचे के समान, है। द फ्लावर वाजेस ऑफ मीन एज ए bouquet of the rose flowers and compared as a garden of the rose flower means is very attractive, is very beautiful places, है ना? So next ये किस कवि की कल्पना है? ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। चमत्कार मीन्स मैजिक, है ना? Magician they do the magic here। In the same way ये किस कवि की mean which poet was here imagine that, कल्पना माने imagine, है। कल्पना माने इस प्रकार की भावना, है। किस कवि ने किसने किया है ये चमत्कार, मैंने ये मैजिक, ये इस प्रकार का दृश्य इन्होंने कवि इस प्रकार बताया। ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है? किसने इस प्रकार के चमत्कार को वर्णन किया है, कल्पना किया है? इमेजिन which person was imagining like this as a magic, right? ये कौन चित्रकार है? ये कौन है चित्रकार है? चित्रकार मीन्स यह सृष्टिकर्ता। यहाँ पे one of the artist, चित्रकार का माने चित्र को खींचने वाला, इमेजिनरी या ड्रॉ है पिक्चर, दैट्स द आर्टिस्ट। बट इसे हियर दैट इज द क्रिएटर। यहाँ पर सृष्टिकर्ता के बारे में ये शब्द का चित्रकार का प्रयोग किया गया। ही इज द इमेजिनर, ओके। ये कौन चित्रकार है? कौन? हु इज द इमेजिनर, हु इज द क्रिएटर, हु इज द आर्टिस्ट, which artist was here explaining, here given the wonders there। ये कौन चित्रकार है? What the person and who is the imagining here creating this creation, माने कौन चित्रकार है? किसने इस चित्र का वर्णन किया है? किसने ऐसी सृष्टि को बनाया है? ऐसा वातावरण को, ऐसे दृश्य को बनाने वाला कौन हो सकता
सकता है वही जो अधिक महत्व रखने वाला जो भगवान है, जो सृष्टि करता है, जिसने इस सृष्टि की है। Is a very wonderful the person, is a great person, the powerful person, and you can't compare to the person as God. Means is not a common person. ये साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अच्छे आत्मिक ज्ञान वाला जो भगवान है, जो सृष्टि करता है, जिससे सृष्टि की गई। इस प्रकार प्रकृति के अंतर्गत एक हिमालय पर्वतों को ध्यान देते हुए कवि ने अपनी भावना को किस प्रकार वर्णन किया है, इस कविता के भाग में बताया गया। इन्होंने कैसे हिमालय पर्वतों को कैसे बताया, एक तपस्वी के समान अटल रूप से तपस्या करने वाले के बारे में बताया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया, ये जो होते हैं ये घुमेदार पर्वत हैं, मैंने यहाँ पे घाट से जुड़े हुए यहाँ पर घूमने योग्य और घेरेदार, ये सराउंडिंग को ऑक्युपाई किए हुए जैसे दिखाई देने वाला सुंदर दृश्य है। और अंतिम तीसरा वाला जो बताया कि हिमालय पर्वत जो होते हैं एक ध्वज के समान है। मैं भारत के उत्तर भाग के अंतर्गत ऐसे खड़े हुए दृश्य दिखाई देते हैं, एज ए बाउंड्री, एज यहाँ पे जो बताया एज ए ध्वज, मैंने एज ए फ्लैग, जैसे फ्लैग सबसे ऊंचा खड़ा होता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही संकेत दिया गया। और वृक्ष देवदार के लंबे लंबे वृक्ष जैसे खड़े होते हैं, इस प्रकार से देवदार वृक्ष के समान में तुलना की गई, एक तो ध्वज से और दूसरा देवदार से। इस वन ऑफ द कंपेयर दैट हिमालय and the mountains as a flag means the flag is the highest peak stage is gone to the standing here, means here one of the trees and the devadar called as a devadar, right, long trees. Next गलीचे ये गुलाब के mean here these mountains are like what one as a flower bouquets. What color, what flower bouquets here? That there are what one as a rose flower bouquet means। और ये जो बताया बगीचे ये बहार के मीन ये वाले जो पर्वत है, ये जो सृष्टि है, प्रकृति है, वो किसके बहार को मन को बहाने वाली यानी मन को मोहित करने वाली एक गुलाब के बगीचे के समान one means as a the rose flower garden, garden of the rose flower means it's very attractive, it's very beautiful, so okay everybody will have feel very happy, right। ये किस कवि की कल्पना है, who is the creator, who is the think about this nature, means what is the which poet was is imagining these things, bit concentrated and they are concentrated to the nature, yes। चमत्कार है, mean यहाँ का wonderful, mean he is a magician, as a magician he is a magic of the nature is given here। Who is the creator, who is the magician, who is the creator of these nature magics, okay। ये कौन चित्रकार है, next another lastly he says that yes ये कौन चित्रकार है, who is the which poet was and given his images here and who is the creator, what the person of creating these things which are the wonderful as a magic, you can't imagine that things about those are created by the God and as a creation। Yes, I think, I hope you can, everybody can be understood here. Yes, next, up to here, this poem was completed 3 stanzas. मैंने आशा है कि आप इन तीसरी दोहे के समेत इसके ये कौन चित्रकार है कविता का समापन हुआ है, आप अच्छे से इसको समझे होंगे।